औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, my name is Hafiz Muhammad Awais Hanif, SS Chemistry. It is our science lecture number 11. In this lecture, we will discuss about physical properties and uses of metals. By the end of this lesson, students will be able to explain the physical properties and uses of metals. Dear students, as we have learned in our previous lecture that scientists classified element into two main groups, that is metals and non-metals. Metals. About 70% elements are metals. All metals have similar properties. Most of the metals are shiny or gray solid and they can be molded or shaped by heating and pressing. Metals are also good conductor of heat and electricity as they allow them to pass through. बेटा जितने भी metals होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है. After that, non-metals. The elements other than metals are called non-metals. They have different properties from the metals. Non-metals can be solid, liquid और gases. Non-metals जो हैं उनको आगे फिर डिवाइड किया गया है. Non-metals solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं और gases फॉर्म में भी हो सकते हैं. Solid non-metals are brittle and you cannot mold or shape them. जितने भी solid non-metals होते हैं उनको हम उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते because they are brittle. Most of the non-metals do not allow electricity and heat to pass through them. और बहुत सारे non-metals ऐसे होते हैं जिनके अंदर से electricity and heat easily pass नहीं हो सकती. They are non-conductor और ऐसे materials, ऐसे non-metals जिनके अंदर से heat pass नहीं होती, they are called non-conductor. Now we will discuss about physical properties of metal. बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज द स्टेट. सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज लस्टर. फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ एंड मैलिबिलिटी एंड लास्ट वन इज कंडक्टिविटी. बेटा हम इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स. Metals are widely used in our everyday life due to their physical properties. बेटा अगर हम अपने अराउंड देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं जो कि मेटल से बनी होती हैं. अगर हम अपने क्लासरूम में भी देखें तो हमारे क्लासरूम में हमारे फैंस, हमारी विंडोज और बहुत सारी चेयर्स ऐसी होती हैं जो कि मेटल से बनी होती हैं. इसी तरह से अगर हम अपने घरों में देखें तो घरों के अंदर भी बहुत सारे टेबल्स, चेयर्स, फैंस और बहुत सारी ऐसी कुकिंग यूटेंसिल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मेटल से बनती हैं. तो हम उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो मेटल की प्रॉपर्टी है दैट इज द स्टेट.
Most of the metals are found in the solid state. However, mercury is found in the liquid state. Mercury is filled in the thermometers to measure the temperature. बेटा आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी इज फिल्ड इन द थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। हमारे घरों के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर जो थर्मामीटर्स होते हैं उनके अंदर मरकरी यूज होता है, जिसको हम उर्दू में पारा बोलते हैं। तो दैट इज मरकरी। आफ्टर दैट हार्डनेस। Most metals are hard solid. For example, iron is used to make steel. Steel is then used for making the rails, bridges, ships, girders, surgical instrument and utensils. बेटा हमें पता है कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, और आयरन जो है इट इज आल्सो अ मेटल एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द स्टील। Then steel is used for making the rail bridges, ships, girder, surgical instrument and utensils. Luster. Freshly cut metals have brilliant shine called luster. बेटा जब मेटल्स को हम कट करते हैं तो वो एक ब्रिलियंट शाइन देते हैं, उस शाइन को हम लस्टर कहते हैं। For example, aluminium is used for making the utensils and picture frame due to its luster. Gold and silver are used to make the ornaments because of their shine. आपने देखा होगा कि gold and silver they are also very shine. इसीलिए इनको ornaments वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। Melting and boiling points. Metals have high melting and boiling points. Due to this property, iron, copper and aluminium are used to make kitchen utensils. बेटा आपने देखा होगा कि किचन के अंदर जितने भी किचन यूटेंसिल्स होते हैं दे आर मोस्टली मेड ऑफ मेटल्स। हमारे किचन के अंदर हमारे केटल्स, हमारे फ्राई पैन, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेटल से बनती हैं, बिकॉज उन्होंने हीट को बेयर करना होता है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो हीट को बर्दाश्त कर लेती हैं। स्ट्रेंथ एंड मैलिबिलिटी। Metals are used to make the sheets, wires and springs due to their property of strength and malleability. बहुत सारी metals जो हैं उनको sheets बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। metals से हम wires भी बनाते हैं, उनसे बहुत सारे springs भी बनाते हैं, और इस property को हम malleability कहते हैं। After that, conductivity. Metals like the copper and aluminium are used in electrical wiring. आपने देखा होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, जितनी भी वायर्स बनती हैं, वो मोस्टली मेटल से बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो हीट को अपने अंदर से पास होने देती हैं। हीट कैन पास थ्रू मेटल्स इजीली. They have the property to allow the electricity pass through them. This property is called conductivity. अगर वो नॉन मेटल्स की बनी होंगी तो बेटा उसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकेगी। Alloys. An interesting property of metal is the ability to form alloy. Definition of alloy. An alloy is a solid solution of metals or non-metals dissolved in metal. जब बहुत सारी मेटल्स या नॉन मेटल्स को मेटल के अंदर ही डिसॉल्व किया जाता है, किसी भी दूसरी मेटल के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो हम उस सॉल्यूशन को, उस सॉलिड सॉल्यूशन को हम एलॉय कहते हैं। तो एलॉय क्या है जी? एक्चुअली किसी मेटल के अंदर, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, जब किसी भी मेटल के अंदर किसी दूसरी नॉन मेटल को या मेटल को डिसॉल्व किया जाता है तो उससे जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है उसे हम एलॉय कहते हैं। उसके लिए बेटा हम
क्या करते हैं कि हम मेटल्स जो हैं उनको हाई टेम्परेचर पे हम हीट करवाते हैं और हीट करने से जब वो मेल्ट हो जाती हैं तो उनको आपस में डिसॉल्व करवा दिया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ एलॉय। बेटा यहाँ पे मेरे पास कुछ एलॉयज की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज जर्मन सिल्वर। It is an alloy of copper, zinc and nickel. It is used in the jewelry. जर्मन सिल्वर जो है बेटा ये भी एक एलॉय है। कौन सी मेटल्स का एलॉय है? इसमें कॉपर, जिंक एंड निकल जो हैं इनको आपस में मिक्स किया जाता है और इनको मिक्स करने से जो हमारे पास एलॉय बनता है उसे हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। इट इज यूज्ड इन द ज्वेलरी और उसको हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। After that, brass. Brass is also an alloy. It is the alloy of copper and zinc, which is used to make pipes, hose nozzles and jewelry. Brass जो है ये जिंक और कॉपर का एलॉय है। मतलब ये हुआ कि जब जिंक और कॉपर को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करके जो सॉलिड सॉल्यूशन बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रास। और इसको आगे फिर हम ज्वेलरी और बहुत सारे पाइप्स बनाने के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। रिकैपिचुलेशन। बेटा अब हमने जो भी पढ़ा उसको हम दोबारा से रिकैप करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने जो पढ़ा उसकी हमें कितनी समझ आई है। तो उसमें दोबारा से मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं आपको। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ मेटल। तो इसमें अभी हमने बेटा डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? दैट इज द स्टेट। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, हाउएवर मर्करी इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। मर्करी इज फील्ड इन द थर्मामीटर्स। हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, फॉर एग्जांपल आयरन इज यूज्ड टू मेक द स्टील। Luster. Freshly cut metals have brilliant shine called luster. For example, aluminium is used for making the utensils and picture frames due to its luster. Melting and boiling points. Metals have high melting and boiling point. Due to this property, iron, copper and aluminium are used to make the kitchen utensils. Strength and malleability. Metals are used to make sheets, wires and springs due to their property of strength and malleability. Conductivity. That is the last property of metal. Metals like copper and aluminium are used in electrical wiring. They have the property to allow the electricity to pass through them. This property is called conductivity. Alloys. बेटा अभी हमने एलॉयज को डिस्कस किया। अब हम उसकी डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। तो एलॉयज क्या है जी? एलॉयज की डेफिनेशन क्या है? एन एलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स डिसॉल्व्ड इन मेटल्स। असाइनमेंट। बेटा मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। आपने ये जितनी भी असाइनमेंट है इसको अपनी कॉपी के ऊपर खूबसूरत करके साफ सुथरा करके आपने नोट करना है। राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। उसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर आपने लेक्चर के अंदर से ढूंढने हैं। इंशाल्लाह आपको इजीली मिल जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज एन एलॉय। एलॉय की डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज अ ब्रास। ब्रास क्या होता है? इसकी डेफिनेशन भी इसकी भी आपको इजीली लेक्चर के अंदर से ही मिल जाएगी। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन कंडक्टिविटी। तो आपने कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है। ये भी आंसर आपको इजीली लेक्चर के अंदर से मिल जाएगा। आफ्टर दैट लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए दैट इज रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एलिमेंट विद देयर यूजेस। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको आपने अपने नोटबुक के ऊपर नोट करना है। बेटा उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपने कंसर्निंग टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।